Okay, students. In earlier classes, you are familiar with the two-dimensional coordinate system. Right? In 10th class, you have studied this two-dimensional coordinate system. If you want to locate any point on the plane, then you have to draw horizontal line, then vertical line, that is y-axis, horizontal, that is x-axis, then mark x-axis by equal intervals, mark y-axis by equal intervals, then we can locate that point that where it is lying on the board or in the plane. Right? So with the help of two-dimensional coordinate system, we can locate the point on the plane. Now, actually this two-dimensional coordinate system, it is the combination of algebra and geometry. Algebra और geometry का ये combination है. And the systematic study was introduced first of all the French mathematician, that is René Descartes. He was from French. René Descartes introduced the systematic study of two-dimensional coordinate system. That is, suppose if you want learn this distance formula, if you want to find the distance between 2 points, see, suppose this P is a point whose coordinates are x1, y1, and here Q is a point whose coordinates are x2, y2. Then the distance PQ, P और Q निकाल डिस्टेंस कैसे निकालते हम? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये फार्मूला से है ना, we can find the distance between 2 points P and Q. That is called the distance formula. And this PQ square will be equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This will be your PQ square. Okay, this is distance. Then second is section formula. Section formula. With the help of section formula, you can find the coordinates of the point lying. Suppose here it is a P point whose coordinates are x1, y1. Here it is a Q point whose coordinates are x2, y2. And R is a point. R एक ऐसा point है which divides this PQ internally n/n ratio में. R जो point है PQ को internally divide कर रहा है m/n में, m/n इस ratio में. Then we can find the coordinates of R, x and y हम निकाल सकते हैं. R के coordinates क्या हो गए? x coordinate क्या होगा R का? mx2 plus nx1 upon m plus n. This will be your x coordinate. y coordinate क्या होगा? y coordinate यहाँ का r का my2 plus ny1 upon m plus n. This will be your y coordinate. आवाज आ रहा है? हाँ, okay. Now suppose this R is your midpoint. R जो है आपका midpoint है. तो midpoint है तो अगर ये 5 है, ये भी 5 है, तो रेशियो जो होगा 5/5 1:1 ही होगा. तो ये रेशियो जो है 1:1 है सपोज. ओके, 1:2. If R is the midpoint, then coordinates of R, this x equal to क्या होगा? 1 into x2, 1 into x1. So x1 plus x2 upon 2. If R is the midpoint, and y equals to y1 plus y2 upon 2 हो जाएगा, right? बराबर है? Then third, if R is a point, this is point Q, whose coordinates are x2, y2, and R is a point here outside this line R. R is point which divides PQ externally. Externally means a m is to a n.
m/n रेशियो में डिवाइड करता है। R इज ए पॉइंट विच इज एक्सटर्नली डिवाइड्स p क्यूब इन द रेशियो m/n। देन यहाँ के कोऑर्डिनेट सपोज xy है, तो x इक्वल टू क्या होगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, am I right? And y equals to my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, खाली ऊपर नीचे माइनस साइन लगेगा, बराबर है? डू यू नो दिस? हाँ, ओके। सो दिस इज अबाउट सेक्शन फार्मूला। इफ PQ divides internally, if PQ divides externally, and if R is the midpoint, then you should know all these three formulae of section फार्मूले के तीनों फार्मूले आपको याद होना चाहिए। थर्ड है आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ये भी आपने क्लास 10th में देखा है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। लेट ABC is a triangle whose all three vertices are given, A, B, C. Let this is x1, y1, x2, y2 and C is x3, y3 है, ठीक है ना? Then area of, if all three vertices are known to you, then we can find the area of the triangle. Then area of triangle ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू ब्रैकेट, पहले x1 लिखना है, x1 1 आ गया यहाँ पे सफिक्स, तो 1 के बाद में 2 आ जाएगा, यहाँ पे y2 माइनस 2 के बाद में 3 आएगा, y2 माइनस y3, x1 हो गया प्लस x2 इंटू ब्रैकेट 2 के बाद में 3 आता है, y3 माइनस y1, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ x3 y3, ओके। देन प्लस x3 इंटू ब्रैकेट क्या होगा, 3 के बाद में 1 आता है, y1 माइनस y2। सो दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। इफ ऑल द three vertices of a triangle are known to you, then area of triangle ABC equal to half into bracket x1 into bracket y2 minus y3 plus x2 into bracket y3 minus y1 plus x3 into bracket y1 minus y2, राइट? ठीक है, मालूम है ये फार्मूला आपको? करेक्ट है ना? हेलो, चलो अभी क्या करेंगे हम, इसी पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला है आपका, सेक्शन फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो जस्ट रिवीजन, टेक सम एग्जाम्पल्स। चलो एग्जाम्पल लेते हैं 10.2 एक्सरसाइज, आई थिंक इट इज 10.1 है क्या वो? हाँ 10.1 सेकंड क्वेश्चन, the base of an equilateral triangle, the base of an equilateral triangle, the base of an equilateral triangle with side 2a, with side 2a, साइड उसकी 2a दिया है ना? लाइज अलोंग द y एक्सिस, लाइज अलोंग द y एक्सिस, ठीक है ना? such that the midpoint of the base, such that the midpoint of the base, उस राइट इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो बेस होगा उसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ एन बेस इज एट द ओरिजिन, इज एट द ओरिजिन, ओरिजिन जो होता है वो उसका मिड पॉइंट है। फाइंड वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड वर्टिसेस of a triangle,
तो ये ट्रायंगल के आपको तीनों वर्टाइसेस निकालना है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन को पढ़ो। द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a, साइड उसकी 2a है, लाइज अलोंग द y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग में उसका बेस रहता है। ये x एक्सिस है, लेट दिस इज y एक्सिस, हाँ, नाउ दिस इज, let this is a and this is also a, so this is 2a, this is midpoint, midpoint। अभी ये 2a जितना है उतना इधर ले लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करो। ऐसा इधर भी हो सकता है जिसका बेस का मिड पॉइंट ओरिजिन होगा, और इधर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट, बराबर है। अभी यहाँ पर हर एक साइड जो होगी उसकी 2a होगी, ये 2a होगी, ये भी 2a होगी, ये भी 2a होगी, है ना, क्योंकि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। लेकिन यहाँ का जो ये बेस जो है उसका BC, द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट, सपोज दिस इज BC, ये पॉइंट A लेते हैं, इधर D लेते हैं, ओके। BC का जो मिड पॉइंट हो दैट इज ओरिजिन, फाइंड द वर्टेक्सेस ऑफ ए ट्रायंगल। एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल इधर फॉर्म कर सकते हैं या इधर भी फॉर्म कर सकते हैं, जिसका बेस जो है वो 2a है, मिड पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है ना, दिख रहा है आपको। अभी क्या करेंगे, हाँ, यहाँ जो है, अभी देखो ये a डिस्टेंस है, तो यहाँ b के कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा और ये प्लस a होगा, बराबर है। यहाँ पर 0 होगा और माइनस a होगा, इतना डिस्टेंस, बराबर है। तो अभी यहाँ के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं है, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स जो है, सपोज वो x कोऑर्डिनेट x से मान लेते हैं और y कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि x एक्सिस पर पॉइंट है ये, तो x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, बराबर है ना। तो यहाँ पर AB इक्वल टू BC हो जाएगा, है ना, और AC इक्वल्स टू भी BC हो जाएगा, राइट। और यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे -x और 0 होगा, D का कोऑर्डिनेट -x, जितना ये साइड होगा उतना इधर होगा -x, तो पहले हम x निकालते हैं। देयरफॉर लेट BC इज द बेस of an equilateral triangle ABC and triangle DBC also equilateral triangle है, okay, and who's the midpoint is the origin and base is along y axis, base जो है along y axis है। therefore coordinate of B जो हो जाएंगे, B के कोऑर्डिनेट वो 0 a हो गए और C के कोऑर्डिनेट 0 -a हो गए, बराबर है। therefore यहाँ पर आपका let the coordinate of A and D are x0 and -x0 respectively। A और D के कोऑर्डिनेट ये x0 और -x0 सपोज। therefore अभी डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, therefore using distance formula, actually you have to find this x in terms of A में आपको x निकालना है, what is x। तो यहाँ पर ये करो AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, AB और BC इक्वल है, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर आएगा। देयरफॉर AB का स्क्वायर निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, AB का स्क्वायर x - 0 होल स्क्वायर
x माइनस 0, 0 माइनस a होल स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टू ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, 2a है ना, दिस इज 2a, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर होगा, बराबर है। AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, तो BC तो 2a है ना, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3a, ये हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर, तो प्लस ले लो रूट 3a और 0, यहाँ के कोऑर्डिनेट रूट 3a और 0 हो गए, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी आर, डी का ए एक्स माइनस होगा, माइनस रूट 3a एंड 0, ऐसा हो जाएगा। समझ में क्वेश्चन? ए और डी के कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल लिए, समझ में? हाँ, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P पॉइंट x1 y1, P पॉइंट x1 y1 and Q x2 y2 and Q that is x2 y2 when number one PQ is parallel to the y-axis, PQ is parallel to y-axis, number 2 PQ is parallel to x-axis, है ना, x-axis को पैरेलल है तो डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तब आप देखो यहाँ सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ पर PQ नंबर वन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई, PQ वाई एक्सिस को पैरेलल है, तो सब मान लेते ऐसा है, ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट P के x1 y1, ये Q के x2 y2, ये PQ इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा ना इतना PQ का डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये जो हाइट है इतनी, ये y1 है, ये हाइट कितनी y2 है टोटल, यहाँ पे देखो ये आपका y2 है और ये जो है ये आपका y1 है, तो डिस्टेंस PQ, देयरफॉर डिस्टेंस PQ क्या होगा डिस्टेंस y2 माइनस y1 होगा ना, ये पूरा y2 में से ये y1 माइनस होगी, ये डिस्टेंस आ जाएगा PQ का, बराबर है। हाँ, तो डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y1। ओके, नाउ सेकंड केस में अगर आपका PQ जो है इफ इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसा है सपोज, चलो यहाँ पे मान लेते ऐसा PQ मान लेते, ये PQ, ये PQ पैरेलल टू x एक्सिस, यहाँ के जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, यहाँ के कोऑर्डिनेट है x2 y2 है। अभी ये जो डिस्टेंस होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट है x1, यहाँ का कोऑर्डिनेट x2 है ना। अगर मैं यहाँ पे इसे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लूँ तो देखो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा आपको समझने में। ये देखिए यहाँ पे x एक्सिस, ये PQ है, P, ये Q, ये x1 y1, ये x2
y2। डिस्टेंस PQ निकाला तो यहाँ का जो है ये वाला, ये आपका x1 है, ये x1 कोऑर्डिनेट, और यहाँ का जो है ये आपका x2 है, यहाँ तक x2 है। तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस PQ कितना होगा? डिस्टेंस PQ कितना होगा? गायत्री, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये पूरा x2, ये 0 है आपका, ठीक है। x2 ये वाला x2 है, उसमें से x1 माइनस कर दीजिए। x2 माइनस x1 मीन्स आपका, अभी देखो अगर लाइन आपकी पैरेलल टू, लाइन सेगमेंट अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो डिस्टेंस x2 माइनस x1, अगर लाइन सेगमेंट आपका पैरेलल टू y एक्सिस है तो डिस्टेंस y2 माइनस y1 है ना, डिस्टेंस y2 माइनस y1। तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन a, find the point on the x axis, x axis पर का पॉइंट निकालना है, which is equidistant from the point, which is equidistant from a point। पॉइंट कौन कौन से देखो, 7, 6 एंड दूसरा जो पॉइंट है 3, 4। ये दोनों पॉइंट से अगर वो वाला पॉइंट इक्विडिस्टेंस पर है, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो वो पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे देखते हैं, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकालते हैं हम, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। पहला पॉइंट है 7 और 6, जैसे यहाँ पे ओरिजिन है आपका 7, 6, तो जैसे यहाँ पर 7 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। यहाँ सपोज आपका 7, 6 पॉइंट मान लेते हैं, ये 7, 6 है। दूसरा है 3, 4, 3 ये 3 और ये 4, यहाँ पे सपोज यहाँ 3 और 4 ये पॉइंट। अब अभी ये दोनों पॉइंट्स अगर एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर है, हाँ, तो अभी मुझे मालूम है पॉइंट कौन सा है, तो इक्वल डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस इक्वल है। अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता, बराबर है? समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी एक्स निकालना है अभी हमको। यहाँ पर अगर ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और ये सपोज A पॉइंट है, तो AP और AQ इक्वल हो जाएंगे, है ना? एज द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, लेट कैपिटल A x0 is equidistant, is at equidistance from P point 3, 4 and Q point 7, 6, ये दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे। देयरफॉर यहाँ पर AP का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AQ का स्क्वायर हो जाएगा, AP इक्वल टू AQ होगा, है ना? तो AP स्क्वायर इक्वल टू AQ स्क्वायर का, AP का स्क्वायर निकालो, x2 माइनस x1, x माइनस 3 होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये AP का स्क्वायर हो जाएगा। AQ का स्क्वायर का x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर, ऐसा होगा। है ना, इस टाइप में। तो चलो निकालो, अभी x की वैल्यू निकालो, तो ये क्या होगा? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 16 इक्वल्स टू, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस 36
कितना होता है, एक्स निकाल लीजिए आप, एक्स स्क्वायर को कैंसिल कीजिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल कीजिए, -14x इधर लाइए, -6x प्लस 14x, ये दो टर्म्स पास में लाइए, ठीक है ना। ये 16 और 9 25 प्लस 25 और ये माइनस इधर लाइए, -49 -36 इक्वल टू 0, उधर 0 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 8x, 8x दिख रहा है आपको, 8x, हाँ अभी तो ये करो 25 माइनस 49, ये कितना का -24 होगा और ये -36 होगा, 60 आ रहा है देखो, -60 आता है क्या, -60 इक्वल टू 0, राइट। therefore 8x equal to 60, x equal to 60 divided by 8, x equal to 4, 15 by 2, therefore x equal to 15 by 2, बराबर है। therefore coordinates of point A are, कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट A के, ये 15 by 2 और 0 ये हो जाएंगे। देखो आप समझ में आएगा, देखो हाँ, तो 15 by 2 और 0 ये कोऑर्डिनेट उसके हो जाएंगे। देखिए कितना भी है 10 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द, अच्छा स्लोप हमारा हुआ नहीं, स्लोप हमारा होने का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो, क्वाड्रिलेटरल दिया है, एरिया निकालना है, क्वाड्रिलेटरल दिया है तो एरिया निकालना, एरिया हमेशा पॉजिटिव लेना है आपको, याद रखना, अगर नेगेटिव भी आता है तो एरिया हमेशा पॉजिटिव देता है, उसका मॉड लेना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन, इन द कार्टेशियन प्लेन, एक क्वाड्रिलेटरल निकालना है आप लोगों को, ठीक है ना, प्लेन whose vertices are, whose vertices are, उसके वर्टाइसेस दिए देखो, -4 5 -4 5 0 7, उसके बाद में 5 -5 5 -5 एंड -4 -2, ये चार उसके वर्टाइसेस दिए हैं। आल्सो फाइंड इट्स एरिया, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। सबसे पहले तो आपको ड्रॉ करना है ये क्वाड्रिलेटरल, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। चलो 1 2 3 4 5 इक्वल इंटरवल्स पर करो ये, देन -1 -2 -3 माइनस, आप ग्राफ पेपर यूज करो, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। चलो पहला पॉइंट है -4 और 5, तो -4 एंड 5 ये यहाँ पर आ जाएगा। लेट दिस इज पॉइंट ए, -4 एंड 5, राइट। दूसरा पॉइंट है 0 7, 0 और 7 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 7 है सपोज, तो 0 7 ये बी पॉइंट है, 0 7, राइट। तीसरा पॉइंट है 5 -5, 5 और -5 इधर आ जाएगा, 5 ये सी पॉइंट है, 5 और ए -5, 5 और -5 दिख रहा है आप लोगों को, हाँ। देन नेक्स्ट -4 और -2, -4 और -2 ये यहाँ पर आ जाएगा, ये डी पॉइंट है, -4 -2। अभी ज्वाइन करो इसे ए बी,
फिर BC को ज्वाइन करो, फिर CD को ज्वाइन करो और इस तरह से AD को भी ज्वाइन करो। तो दिस विल बी योर क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से आपको क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। अभी इस क्वाड्रिलेटरल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो क्या करो, इसका डायगोनल कोई भी एक ज्वाइन करो। डायगोनल ज्वाइन करने से, डायगोनल ज्वाइन करो कोई भी एक डायगोनल, ये भी कर सकते ये भी कर सकते। चलो ये वाला कर दे हमारी डायगोनल ज्वाइन सपोज, ये आपका डायगोनल है, इसको ज्वाइन करो। ये डायगोनल ज्वाइन किया तो क्या होगा, देखो ये वाला जो ट्रायंगल है BAC, तीनों वर्टाइसेस पता है आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग 3 वर्टाइसेस निकालना है। और बाद में ADC, इसके भी तीनों वर्टाइसेस आपको पता है, उसका भी एरिया, तीनों वर्टाइसेस अवेलेबल है, तो आपको उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है। हाफ इंटू ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फार्मूला यूज करो। अलग से ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो, बाद में ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो, दोनों को ऐड करो तो यू विल गेट द एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल। समझ में कर सकते हैं आप? हेलो, हाँ, तो इसे करो फिर, ठीक है ना? ओके।